आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 वाशी कंपनी। ये सम मैंने एक बार क्लास में किया था, आई थिंक ऑलमोस्ट 10-15 डेज अगो। एंड मेरे को बिल्कुल भी नहीं आया था ये सब। तो अब मैं, बिकॉज आई डेंट नो फॉरेन एक्सचेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट इवन 10-15 डेज, इट वाज लाइक थिंक 20 डेज अगो और समथिंग लाइक दैट। आज ये सब मैं वापस करने वाला हूँ ट्राई, बिकॉज मुझे अभी फॉरेन एक्सचेंज आता ही नहीं था, तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था किसी क्वेश्चन के बिना। ऐसा हो गया था। सो नाउ discuss how investing in overseas projects may enable Vashi company to gain competitive advantage over its competitors who only invest in domestic projects। तो सबसे पहली बात तो अगर ओवरसीज प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। वी कैन डाइवर्सिफाई द प्रोजेक्ट, वी कैन invest in different aspects of the project। After investing in different aspects of the project, हाँ, हम फॉरेन में जैक उनका, हम एक्चुअली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं रिस्क को, फॉरेन एक्सचेंज वाले रिस्क को। सेकेंडली हमें कैसे हो सकता है कि हमें वहाँ वाले कस्टमर्स, लाइक ओवरसीज कस्टमर्स के टेस्ट के बारे में पता चल सकता है, एंड हम उस हिसाब से वो मतलब प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इन सर्टन सिचुएशंस। लाइक हमारे डोमेस्टिक कंट्री में शायद इट विल बी वेरी वेरी नॉर्मल प्रोडक्ट, बट इन द आउटसाइड or overseas projects it will be a very extraordinary product, and thus might work and gain significant profits। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमें वहां पे चीप लेबर मिल जाए, या स्मार्ट और एक्सपर्टीज वाला मतलब वो लेबर मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये सब हम चीजें हम आपके लिख सकते हैं। लेट्स चेक। Vashi company may want to invest in overseas project for a number of reasons which result in competitive advantage for it. For example, the overseas may give Vashi company access to new markets or enable it to develop a market for its products in locations where none existed before. Barabar, being involved in marketing and selling the products overseas markets may also help it gain a understanding of the needs of the customers, which it may not have had if it merely exported its products overseas. Overseas, uh, investing overseas may give Vashi easier and cheaper access to raw materials it needs. It would therefore make good strategic sense for it to undertake the overseas investment. Investing in projects internationally may give Vashi company access to cheaper labor resources and or access to expertise which may not be readily available in Japan. This could therefore lead to reduction in cost and give Vashi company an edge against its competitors. Yeah. Closer proximity to markets, raw materials, and labor resources may enable Vashi company to reduce its cost. Closer proximity to market, एक मिनट, proximity का क्या रहता है भाई, पहले वो देख लेते हैं। उधर ही कर सकता था मैं। What is proximity, एक बार जरा वो देख लेते हैं। Closer proximity to markets, raw materials, and labor resources may enable Vashi company to reduce its costs. Proximity is nearness in space, time, or relationship. Okay, basically it's like कि अगर जगह छोटी छोटी होती जाएगी, यानी कि अगर मैं अगर इंडिया से रॉ मटेरियल्स वहां भेजूंगा यूएसए में, तो बहुत फालतू चीजें हैं, बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है। बट क्लोजर प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट से का ये मतलब ही कि अगर मैं मतलब वो टेक्सास में रॉ मटेरियल्स पे प्रोड्यूस करके अगर मैं मिजोरी में बेच रहा हूँ, या मैं मिजोरी में रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करके अगर मैं क्या बोलते हैं कहीं और बेच रहा हूँ, यानी कि न्यूयॉर्क में बेच रहा हूँ, सो दैट गिव्स, मतलब वो जल्दी वो इसमें करना छोटे आसपास करना बेसिकली, ऐसा। For example, transportation and other costs related to logistics may be reduced if products are manufactured close to the markets where they are sold. Risk, say, such a economic risk resulting risks such as economic risk resulting from long-term currency fluctuations
may be reduced where costs and revenues are matched and therefore naturally hedged. Risk such as economic risk resulting from long-term currency fluctuations may be reduced क्योंकि हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बेसिकली ऐसा कि जैसे अगर मेरे कंट्री में समझो अगर वो रिसेशन आया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो 5 बाहर की के देशों में इन्वेस्ट करके रखा है वहां पर भी मतलब वो रिसेशन ही आया हो, शायद वहां पे एक मतलब इकोनॉमिक बूम चल रहा हो, शायद वहां पे मतलब वहां पे प्रॉफिट्स हो रहे हो मेरे को और यहाँ पे मेरे को लॉस हो रहा है, सो इट डाइवर्सिफाइज द रिस्क country to country also. Vashi company may increase its reputation because it is based in country within which the trades leading to competitive edge against its rivals. And last is international investments may reduce both the unsystematic and systematic risks for Vashi company if the shareholders only hold well diversified portfolios in domestic markets but not internationally. International investments may reduce both unsystematic and systematic risk for Vashi company if shareholders only hold well diversified portfolios in the domestic markets but not international. ठीक है. अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स को शायद उतना फायदा नहीं होगा इस चीज से, लेकिन नॉर्मल शेयर होल्डर्स को 100% होगा बिकॉज इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स ने अपना पोर्टफोलियो ऑलरेडी इतना डाइवर्सिफाई करके रखा होगा कि इस ओवरसीज के डाइवर्सिफिकेशन से उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना. और बी पार्ट अभी, प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वाशी कंपनी विच estimates the expected amount of JPY receivables under each head choice and additional debt finance needed to fund the Aeron project for the preferred head choice. Abhi, estimate the expected amount of receivables under each head choice and the additional debt finance needed to fund the Aeron project for the preferred head choice. ठीक है, मतलब मुझे रिसीवेबल्स जानने हैं. मैं शायद डॉलर्स में ही हूँ, मेरे को जेपीवाई में रिसीवेबल्स आने वाले हैं, ऐसा कुछ तो हो अभी ये होगा ना, देखते हैं. ओ हाँ, ये तो मैंने सब पढ़ा ही नहीं था, मुझे तो डायरेक्टली मैंने वो रैंडम आंसर ही था क्योंकि वो इतना रैंडम आंसर था कि वो बेसिक हम कुछ भी बोल सकते थे, ऐसा था. अभी ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. वाशी कंपनी इज अ लार्ज अनलिस्टेड कंपनी बेस्ड इन जापान and its local currency is the Japanese yen. It manufactures industrial equipment and parts. Initially, Vashi Company's customers consisted of other Japanese companies, but over the last 12 years, it has expanded into overseas market and also sources its material from around the world. Company's board of directors believe that the strategy of overseas investment through subsidiary company branches and joint ventures has directly led companies substantial increase in the value in the past few years. ठीक है. Vashi Company's board of directors is considering investing in Aeron, project based in Aeron. अच्छा, Aeron एक जगह का नाम है, ठीक है. Whose currency is the Aeron Rand. It believes that the project will be an important addition to the company's portfolio of investment. ये बोल रहा है कि ये एरोन में जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. तो यानी कि देखो हमें जापानीज से मिलने वाला है, हमें हमें एरोन में इन्वेस्ट करना है, तो हम कोई और ही कंट्री है बेसिकली. ठीक है. हम कौन सी कंट्री कहीं दिया है क्या? ओ नो नो सॉरी, वैशी कंपनी इज अ जापानीज कंपनी. ओके, हम तो जापानीज कंपनी ही है. ओके, तो हमको जो रिसीवेबल्स आने वाले हैं, ओके वो कहीं और कंट्री में या हमको हमारे कंट्री में आने वाले, ठीक है देखते हैं. बिकॉज वैशी कंपनी does not currently have a significant presence in this part of the world where Aeron is located. It is intended that the project will commence in 1 year's time. Details of the projects are given below.
वैशी कंपनी intends to finance the project through proceeds from an agreed sale of a small European subsidiary. यूरोपियन सब्सिडरी, तो हमें यूरोप से आने वाले पैसे. With any remaining funding requirement being met by additional debt finance issued in Japanese yen. The company is due to receive its proceeds from sale of the European subsidiary in 6 months' time, and it will then invest these funds in short dated Japanese treasury bills for a further 6 months before they are needed for project. अच्छा, तो ये लोग जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये जो पैसा मिलने वाला है इन दो ट्रेजरी फंड्स. ठीक है. वैशी कंपनी हैज अ सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी डिपार्टमेंट which hedges expected future cash flows against currency futures. Agreed proceeds from the sale of European subsidiary company receivable in 6 months' time are the European 80 million. ठीक है, चलो. 80 मिलियन यूरोस मिलने वाले हैं इसको. मैं यूजुअली फुल फिगर्स में ही लिखता हूँ, तो मैं फुल फिगर्स में ही लिखता हूँ. बराबर है. 80 मिलियन यूरोस, परफेक्ट. सॉरी. इन 6 मंथ्स टाइम, मेरे को इन 6 मंथ्स टाइम मिलने वाला है. चलो आगे बढ़ते हैं. Board of Directors is concerned about the negative fluctuation of European to JPY rate between now and 6 months when the European 80 million will be received. Therefore, it has asked Vashi Company's Treasury Department to hedge the expected receipt using one of the currency forwards, currency futures, और exchange traded options. चलो nice. तीनों आते हैं. स्वॉप्स नहीं आया, बेटर है. तब सबसे पहले ये देख लेते कि स्टेबल करेंसी कौन सी है. अच्छा, स्टेबल करेंसी फॉरेन करेंसी है. ओके, तो मतलब मेरी करेंसी इज द अनस्टेबल करेंसी. वर्किंग नोट्स फॉरवर्ड मार्केट हेजिंग. इसमें कैसे रहता है ये देखो. यूरोस, मैं सबसे पहले ऐसे लिखता हूँ यूरोस, और मैं कौन सी हूँ, मैं आई थिंक जेपीवाई हूँ ना, जापानीज येन. तो मेरा तो स्टेबल करेंसी है. फॉरवर्ड मार्केट हम सबसे पहले देखते हैं. यहाँ पे कहाँ गया फॉरवर्ड मार्केट, ये रहा. ये रहा. 125.3 इज टू 80 मिलियन यूरोस. ओ भाई, मेरे को मल्टीप्लाई करना है. शिट, बहुत ज्यादा करेंसीज में जाएगा एक्चुअली, और ये जाना ठीक है अभी. ठीक है अभी, मतलब इतने जीरोस में जा रहा है तो ठीक है. मैंने भी मैं मेरे को भी ये फुल फिगर्स में ही करना है, क्योंकि क्या है ना, बाद में चल चल के वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब कुछ निकालना रहता है, तो मेरे को वो नहीं पसंद फालतू में अलग से करने को. तो 128.6. तो अभी देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे. फॉरवर्ड मार्केट में बैंक रहता है, फ्यूचर ऑप्शंस में स्टॉक एक्सचेंज रहता है. अभी सबसे पहले तो मेरे को यूरोज मिल, मुझे मुझे फॉरेन करेंसी के पर्सपेक्टिव से सोचना है. ठीक है. अगर मुझे फॉरेन करेंसी के पर्सपेक्टिव से सोचना है तो मुझे यूरोज आने वाले हैं. आई एम गोइंग टू गेट यूरोज. लेकिन मैं उनका क्या ही करूंगा, क्योंकि मेरे देश में तो जापानीज मतलब वो येन चलता है. ठीक है, तो मुझे यूरोज आने वाले हैं. मैं यूरोज लूंगा, बैंक के पास जाऊंगा, एंड मैं बैंक को यूरोज बेचूंगा. सो बैंक विल बाय एट लो. बैंक विल बाय एट लो मतलब ये वाला वैल्यू 125.3. सो दैट फिक्सेस माई फॉरवर्ड. ठीक है, ये मेरा फॉरवर्ड हो गया. एक बार चेक कर लेते हैं. ये देखो, अरे कितना हिल रहा है. इट्स वेरी स्लो एक्चुअली, माय पीसी इज हैंगिंग. ठीक है, तो ये मेरा बिल्कुल सही आ गया. अब मैं आता हूँ फ्यूचर्स पे. देखो, जब मैं फ्यूचर्स पे आता हूँ, मुझे सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे निकालता हूँ.
नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में निकालता हूँ, अमाउंट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज, लेकिन सबसे पहले मेरा अमाउंट कितना है, 80,000 यूरो, मतलब सॉरी 80 मिलियन यूरोस। ठीक है। अब मैं सबसे पहले देखता हूँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज कौन से करेंसी में है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज थैंक गुडनेस यूरोज में ही है। सो कॉन्ट्रैक्ट साइज यूरोज में ही है। क्या है, कितना है, 12500, बस इतना ही है, हाँ 12500। तो मुझे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली मिल जाते हैं, विच इज 640 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है ना, ये मुझे डायरेक्टली मिल गए। अब अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना, मुझे वापस मेरी स्टेबल करेंसी जो मुझे दी गई है, मुझे जापानीज येन की दी गई है मेरी स्टेबल करेंसी। ठीक है ना। अभी ध्यान देना, मुझे पेमेंट कितने टाइम बाद करना है। मुझे पेमेंट जो करना है वो मुझे करना है 6 महीने, सॉरी मुझे पेमेंट जो आने वाला है वो आने वाला है 6 महीने बाद। ठीक है ना, मुझे पेमेंट 6 महीने बाद आने वाला है। अगर मुझे पेमेंट 6 महीने बाद आए तो मतलब मुझे स्पॉट रेट से 6 महीने की एक्सपायरी चाहिए। क्या मेरे पास 6 महीने की एक्सपायरी है? मेरे पास नहीं है, मेरे पास 7 महीने की एक्सपायरी है, विच इज गुड। 7 महीने की एक्सपायरी इज गुड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेसिस लिखूंगा, बेसिस अनएक्सपायर्ड बेसिस लिख देता हूँ, अनएक्सपायर्ड बेसिस। ओपनिंग क्लोजिंग में देगा मेरे को मेरा बेसिस। अभी ये जो होगा, सबसे पहली बात तो मुझे ओपनिंग, अब ये मुझे चाहिए स्पॉट रेट पे जो है वो। अब मैंने स्पॉट रेट के तो कैलकुलेशन किया नहीं है, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा स्पॉट रेट डिसीजन। 129, देखो इस ARD को तो भूल ही जाओ, हाँ, ये कभी तो बाद में चाहिए, ऐसा लगता है, तो इसको भूल जाओ। 129.2 एंड यहाँ पे आता है 132.4। ठीक है ना, तो मैंने ऐसा उल्टा लिख दिया अभी। स्टॉक एक्सचेंज विल बाय एट लो। ठीक है ना, तो लो मतलब मैं 129.2 वाला वैल्यू यूज करूंगा। अच्छा, अगेन कैसे डिसीजन लेना है मैं पहले वो भी बता देता हूँ। देखो मेरा यहाँ पे यूरोज में है, यूरोज में कॉन्ट्रैक्ट साइज। जब ये मेरा यूरोज में ना, तो मुझे यूरो के पर्सपेक्टिव से देखना है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास जाऊंगा, उनको मेरे यूरोज दूंगा, तो वो मेरे से खरीदेंगे ये यूरोज। अगर यही चीज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज डॉलर में होता, या सॉरी वो येन में होता, तो मैं कैसे सोचता, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइज मतलब वो येन में है ना, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास जाऊंगा, मैं उनसे येन लेने वाला हूँ, मैं उनको यूरोज देके येन लेने वाला हूँ, तो आई एम बाइंग येन। कॉन्ट्रैक्ट साइज का ये मतलब होता है कि ये मुझे उस करेंसी में मिलने वाला है, तो मुझे ये उस करेंसी के पर्सपेक्टिव से सोचना है, ऐसा। तो अगेन आई एम बाइंग, सो सॉरी स्टॉक, हाँ आई एम बाइंग, सो स्टॉक एक्सचेंज इज सेलिंग, सो दे विल सेल एट, एक सेकंड सॉरी सॉरी, मैं यूरोज लेके उनके पास जा रहा हूँ, वो लोग मेरे से यूरोज बाय कर रहे हैं, हाँ दे आर बाइंग यूरोज फ्रॉम मी। इफ दे आर बाइंग, सो दे विल बाय एट लो एंड सेल एट हाई। हमेशा इट इज बाय एट लो एंड सेल एट हाई, वरना फिर कोई भी बैंक या स्टॉक एक्सचेंज अपना प्रॉफिट कैसे कमाएगा ना, ऐसा। और ये हाई एंड बाय एट लो एंड सेल एट हाई, लो एंड हाई व्हाट, तो लो एंड हाई वैल्यू एंड नॉट द रेट। ठीक है ना। कई बार जब अगर ये 80 लाख जापानीज येन में होता तो आंसर उल्टा आता, इसलिए हाई एंड लो वैल्यू, तो बाय एट लो वैल्यू, तो ये वाला आंसर आया। फिर अगेन क्लोजिंग तो मुझे दिया ही है 7 मंथ 125.2। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 7 मंथ्स का है, शायद इन्होंने खुद ने दिया हुआ है ना। तो ये 7 मंथ्स का डिफरेंस है। बेसिकली मुझे 1 महीना उल्टा आना पड़ेगा। अब मैं उल्टा आऊंगा तो मैं ऐड करूंगा कि माइनस करूंगा, ये ध्यान में रखना। अनएक्सपायर्ड
बेसिस। अब ये ध्यान देना कि मैं उल्टा रहा हूं तो मैं ऐड करूंगा कि माइनस करूंगा, तो ये देखो वो 7 महीने बाद गिर रहा है। वो सात सात महीने बाद वो 129 का 125 है, वो गिर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसका 1 महीने पहले वैल्यू ज्यादा थी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 6 मंथ्स पे आने के लिए 7 मंथ्स वाले पे अनएक्सपायर्ड बेसिस ऐड कर दूंगा। तो मुझे आएगा ये वाला वैल्यू। ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ राउंड ऑफ। कितने से राउंड ऑफ करूँ, उन्होंने हर जगह पे एक एक से किया है ना, चलो एक से ही करना पड़ेगा, मतलब हमको भी। राउंड अप्रोक्स ले लेता हूँ। अप्रोक्स टू 1 डेसिमल, डेसिमल एज पर क्वेश्चन। ठीक है। तो अभी अभी कुछ नहीं, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ इसका वैल्यू। फ्यूचर्स एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइजिंग फ्यूचर्स, एक्सरसाइजिंग दी फ्यूचर्स, तो वो कैसे होगा, रेट विच इज 125.8, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट साइज, दिस अब माइंड यू ये मुझे डायरेक्टली यहाँ पे येन में मिल गया है बाय द वे। सो दिस इज माय वैल्यू थ्रू फ्यूचर्स, ठीक है ना। तो आई थिंक माय वैल्यू थ्रू फ्यूचर्स इज करंटली विनिंग, बिकॉज उसमें मेरे को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, राइट। सो आई थिंक मैं फ्यूचर्स के साथ जाऊंगा एज कम्पेयर टू, ये देखो बराबर है 10064 मिलियन, 10064 मिलियन, ये हाँ जो हमको भी आया है। ठीक है। तो मैं फ्यूचर्स के साथ जाऊंगा एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड्स, लेकिन अभी तक ऑप्शंस का डिसीजन लेना बाकी है। ऑप्शंस में क्या रहता है, ऑलमोस्ट सब चीजें सेम रहती है। बस यहाँ पे नंबर, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइज पर पहली बात तो बदला है क्या, कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं बदला है, गुड। सेकेंडली मेरे को ऑप्शन में प्रीमियम पे करना है, राइट। अब हम्म, चलो प्रीमियम पे करते हैं। प्रीमियम रेट, प्रीमियम का मेरे को रेट चाहिए ना, प्रीमियम का मेरा रेट कितना है, एक मिनट, दिस इंटू दिस, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट साइज तो सेम है। अब मेरा प्रीमियम का रेट कितना है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे कॉल और पुट दो ऑप्शंस है। पहली बात तो 4 महीने के एक्सपायरी मेरे लिए कुछ कर नहीं रही है, तो 4 महीने तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट्स में हमको, सॉरी ऑप्शंस में हमको 7 महीने को 6 महीना, 8 महीने को 6 महीना वैसा करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली ले ले सकते हैं। अभी कॉल और पुट ऑप्शंस में 7 मंथ एक्सपायरी करना है, कौन सा लेना है, कॉल या पुट। सो अगेन, जैसे मैंने पहले बोला था वैसे ही सोचना है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज जिस करेंसी में है, उस करेंसी के साथ मैं अभी क्या करने वाला हूँ। सो ध्यान देना, मैं यूरोज लेके स्टॉक एक्सचेंज के पास जा रहा हूँ, यूरोज मैं सेल कर रहा हूँ और वो बाय कर रहे हैं। मैं सेल कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ मतलब पुट्स, पुट ऑप्शन। ऐसा तो पुट ऑप्शन होगा 3.8 का, दिस व्हाट आई फील। और ये चीज हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखनी है, वी विल बी यूजिंग दी पुट ऑप्शंस एंड क्यू वगैरह वो सब, मतलब वो लिखना है कि अरे विल बी सेलिंग यूरो, ये करेंसी, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है। अभी प्रीमियम हो गया, फिर हमें करना है एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको कैसे करेंगे, अभी एक्सरसाइज कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ पे बस मैं लिख दूंगा ऑप्शंस, यहाँ पे लिखूंगा स्ट्राइक प्राइस, कॉन्ट्रा ये मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको मैं लिखूंगा एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे बस मेरा स्ट्राइक प्राइस बदल जाएगा। स्ट्राइक प्राइस मेरा कितना है, मुझे मुझे दिया हुआ है क्या, है देखो दिया हुआ है 126। तो रिमाइंड यू यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि सारी चीजें येन में ही चाहिए और रेट भी येन में है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वरना नहीं होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। फिर हम आ जाते हैं अभी ऑप्शन समरी पे।
जब हम लोग ऑप्शंस की समरी पे आते हैं ना, अच्छा सबसे पहली बात तो 126 एम आई एबल टू, हाँ ये देखो सबसे पहली बात ना, हमको हमेशा डिवाइड करके ये देखना है कि क्या मैं उतना कवर कर पा रहा हूँ कि नहीं। मैं प्रॉपर 8 लाख जो यूरोज है ना, सॉरी 80 लाख यूरोज, वो मैं कवर कर पा रहा हूँ। अब ये कब मैं कवर नहीं कर पाता, जब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ और होता, भलता ही होता ना, जैसे कि 450 ऐसा होता ना, तो शायद मैं नहीं कर पाता। कि जैसे पॉइंट्स में आ गया, अगर 640.02 आ गया या 20 आ गया, और फिर मैंने उसको मतलब वो राउंड ऑफ किया 640 पे, मतलब वो 0.2 आ गया, फिर मतलब मैंने अंडर या ओवरेज किया हुआ है। अब इस केस में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कैलकुलेशन सारे, लेकिन हर गेम में ऐसे नहीं रहते, हर इसमें ऐसा नहीं रहता। प्रीमियम एंड एक्सरसाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट, देखना प्रीमियम के साथ ना हमेशा केयरफुल रहना, कि क्योंकि प्रीमियम थोड़ा कंफ्यूजिंग बन सकता है। हमेशा प्रीमियम के लिए ये ध्यान रखना कि मेरे को पैसे मिल रहे हैं कि पेमेंट हो रहा है, यही देखना है। बस एकदम एकदम ही ब्लंट ओके, बस ये देखना है कि मेरे को आ रहा है कि पैसा जा रहा है। तो पैसा आ रहा है तो मतलब प्रीमियम माइनस में ही रखना है। प्रीमियम शुड बी इन माइनस। एंड यहाँ पे भी मुझे एक्चुअली येन में ही मिल गया है अमाउंट, तो मैं इसको ऐसे मतलब वो लिख देता हूँ। तो देखो मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं 9776। चेक करते हैं एक बार। देखो 9776 परफेक्ट। तो अब मैं कौन सा वाला लूंगा। देखो मुझे रिसीव कौन सा वाले में ज्यादा हो रहे हैं पैसे। आई एम रिसीविंग मोर, दस एज आई एम रिसीविंग मोर अमाउंट स्लैश अमाउंट इन futures, I will be opting for the futures contract। ठीक है, ये पार्ट तो आई थिंक हो गया ना अभी। जरा इसको थोड़ा सा रब वब कर देता हूँ अभी, थोड़ा मेरा थोड़ा ऐसा दिमाग हो गया। हो गया ना पहला वाला। Estimate the expected amount of JPY receivable under each hedging choice and the additional debt finance needed to fund the एरोहेन प्रोजेक्ट फॉर। अच्छा, एडिशनल फंडिंग फाइनेंस निकालना है, तो एडिशनल फंड भी निकालना है। सो द अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड इज इतना येन, ठीक है ना। लेकिन अगर उनको पता होगा, अभी कुछ तो मुझे यहाँ पे करना है, एडिशनल फंडिंग मुझे कुछ तो चाहिए, वो पहले देख लेते हैं क्या है। एनुअलाइज यील्ड शॉर्ट डेटेड जापानीज ट्रेजरी बिल्स इज 1.2। ये 1.2 बेसिकली ये है ऊपर जो हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं ना अगले 6 महीनों के लिए, ये वो है। करंट इन्फ्लेशन इट इज 9%, बट हैज फ्लक्चुएटेड markedly in the last 5 years. Japanese annual inflation rate is 1.5% and has been stable for many years. Arrow's project information. A member of Ashi Company's finance team has produced the following estimates of Arrow project, which is expected to last for 4 years. The estimates are based on the notes given below, but not on the further information. The estimates have been checked and verified independently of their numerical accuracy. तो न्यूमेरिकल एक्यूरेसी है इन सब की, बेसिकली बोलना चाहते हैं। देखो मेरे को पैसा जो लगने वाला है ना ईयर जीरो में, दैट इज 10150, बट दैट इज इन ARD। मेरे को उसको जापानीज येन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा उससे पहले मैं पैसा इन्वेस्ट भी तो कर रहा हूँ ना, तो मेरे को ये 6 महीने बाद करना है ना बेसिकली। अरे यार ये इतना स्लो है ना मेरा। मेरे को ये सारे पैसे 6 महीने बाद इन्वेस्ट करने हैं ना वैसे। यहाँ पे तो नहीं दिया है।
इधर जाएगा कंपनी टू टू इन्वेस्ट लीव्स फंडिंग। हाँ देखो फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स बिफोर दे आर नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। हाँ बिफोर मतलब मैं 6 महीने बाद ही कर रहा हूँ, चलो गुड। आ, हाँ ठीक है। सो वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन, दिया था ना इधर, हाँ एनुअलाइज्ड, इधर भी दिया और ऊपर भी दिया हुआ है कि वो ट्रेजरी बिल्स में हम लोग इन्वेस्ट करें, एनुअली रीफंड ट्रेजरी बिल्स ऑन, एनुअलाइज यील्ड भी लिख रहा हूँ, इन इन शॉर्ट डेटेड ट्रेजरी बिल्स, तो देयरफॉर इनका रेट है 1.2% का, है ना। हाँ, दिस इंटू 1.2%, बट मैं 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अब मैं को इतना इंटरेस्ट मिलेगा इसमें, ये बहुत ही खराब इन्वेस्टमेंट है वैसे, मैं बस बताना चाहता हूँ। डोंट डोंट गो फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। ये नहीं ठीक है। अब मेरे को एक्स्ट्रा इसमें लगने वाला तो है, इन्होंने खुद ने मेरे को बोला है कि एक्स्ट्रा तो देख बॉस, वो तो लगने ही वाला है। अब एरोन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना, 10120, 123, है ना। इतना मेरे को एरोन में चाहिए ना, है ना। ओ 150, 150 एरोन में मेरे को चाहिए। और अब मेरा एरोन है कितना, मेरा जो एरोन है वो है इतना EUR। तो मैंने एक चीज सीखी थी, इफ A is equal to B and B is equal to C, if A is equal to B, एक मिनट ना, if A is equal to B and B is equal to C, then that means A is equal to C, ठीक है। So JPY this, J ARD this, ठीक है। अभी 129.2 will be, this 129.2 will be 927 नहीं, वेट वेट वेट, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा। अगर दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, देन दैट मींस इनवर्स होगा, इसमें इनवर्स होगा केस। क्यों बताता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ का बोरोइंग विल बी उसके यहाँ का डिपॉजिट, समझ रहे हो, मतलब मैं जिस कंट्री पे लेना चाहता हूँ पैसे, वो उस कंट्री में बेचना नहीं चाहता, मतलब उसका बेचने का रेट अलग है, ऐसा मैं बोलना चाहता। आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, मेक दिस अंडरस्टैंड प्रॉपरली और नॉट, बट ऐसा है ये, ठीक है। इस तरीके से है ये। अब देखो मुझे इन्वेस्ट करना है एरोन में, तो मैं मेरी बैंक के पास जाऊंगा, मैं मेरी बैंक को बोलूंगा कि भाई मुझे एरोन में इन्वेस्ट करना है। सो यू नो व्हाट, लेट्स डू इट लाइक दिस कि JPY ARD, ठीक है, 120, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ही है ना, तो एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, JPY ARD, Ctrl+X Ctrl+V, ठीक है। अब मेरे को एरोन कितना चाहिए, इतना चाहिए, 10,500, ठीक है ना। सो नाउ वी विल जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड देन लेट्स सी, ठीक है। मेरे को ये कुछ दोनों वैल्यूज मिले हैं। अब ध्यान देना, मैं मेरी बैंक के पास जाऊंगा, मैं मेरी बैंक को बोलूंगा कि देखो मेरे को इतना ARB चाहिए, तो मेरे को बैंक ARD देगा, मतलब वो मेरे को बेचेगा। अगर वो मेरे को बेचेगा, तो अगर वो मेरे को बेचेगा तो मेरे को कितने वैल्यू, मतलब वो मेरे को प्रॉफिट पे जाएगा कि लॉस में बेचेगा वो,
वो हाई पे बेचेगा ना, वो हाई पे बेचेगा, तो ये हो गया 1449, मतलब मेरे को उसको ज्यादा ज्यादा मतलब पैसे देने पड़ेंगे। 10, मैं इसी कैलकुलेशन को यहाँ पे दिखा दूं क्या ऐसे, यहाँ पे ऐसे शो कर देता हूँ। 10 बैंक स्लैश स्टॉक एक्सचेंज will try to sell at high, and so they will sell us ARD at a high value. So हमको जो टोटल फंड्स चाहिए ना, वो हमको चाहिए इतने, टोटल फंड्स रिक्वायर्ड इन येन। तो अच्छा हुआ ना कि मेरे को इसमें एक येन पे आने की जरूरत ही नहीं है, पर येन कितना है या फिर पर एआरडी कितना है, उस पे मैं आऊं ही क्यों, है ना। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ, ओ फक, कुछ तो हक दिया भाई हमने, बहुत बड़ा वाला हगा है हमने ये। ओवर कॉन्फिडेंस में आके जो हगा है ना मैंने, ये बिल्कुल सही नहीं था, ये तो गलत हो गया। क्या गलत किया ऐसे मैंने, वो समझा ही नहीं। 1 2 3 4 0 3 0, हाँ। मैंने दिस माइनस दिस ही किया ना। हाँ, मैंने यहाँ पे कोई जीरो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, कहीं और मैंने कोई जीरो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है क्या? आई डन समथिंग रॉन्ग ऊपर? यूरो चेक करो, या फिर ये वाला वैल्यू चेक कर दे, रुक जाओ। उन्होंने क्या मेरे को बोला था कि मेरा 640, फिर उसके बाद 3 0, उसके बाद 3 0, हाँ बराबर है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मेरे को कितना चाहिए था फिर नीचे? आई नीडेड, अच्छा अच्छा ये वैल्यू मिलियंस में ही है। ओके, एक मिनट, ये वाली वैल्यू मिलियंस में ही है। अगर मेरी ये वाली मेरी वैल्यू वैल्यू मतलब मिलियंस में है, तो मुझे और 3 0 डालने पड़ेंगे क्या? फक, व्हाई इज दिस सो कंफ्यूजिंग, वेट। इतना कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए जितना मैं इसको बना रहा हूँ ना। इसलिए ये वैल्यू थाउजेंड्स में नहीं है, ये वैल्यू मिलियंस में है। हाँ, मतलब ये जीरो का प्रॉब्लम है, देखो। 10150 ये मिलियंस में है, तो उसके बाद 1 2 3 1 2 3 6 0 होते हैं ना मिलियंस में, तो ऐसा ये वैल्यू है एक्चुअली। वो एक्चुअली मिलियंस का सीन हो गया, मेरे को वो समझा ही नहीं कि, लेकिन क्योंकि देखो वो मेरे को मिस्टेक मेरी पकड़ में आ गई, क्योंकि उन्होंने बोला है एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए, तो 10, दीज आर दी एक्स्ट्रा फंड्स that will be required to fund the project in Aeron। चेक करना है अभी। 4375 पकड़ लेते, चलो 4375, क्योंकि मतलब लग रहा है कि उन्होंने पक्का राउंड ऑफ किया रहेगा। देखो वो लोग ना सबसे पहले वो पर मिलियन पे आ गए हैं, मतलब पर एरोन कितना आता है और वो सब पे आ गए हैं। दे आर गेटिंग, नो दे आर गेटिंग 3408। हाँ, एडिशनल डेट फंड उनको अलग आ रहा है, तो ये लोग पर इस पे आ गए। मे बी दैट्स वाई। अगर इन्होंने लोअर वैल्यू यूज की है तो भी नहीं। वी हैव टू फर्स्ट कम एट पर जापानीज येन का वैल्यू। दे आर सेइंग पहले पर जापानीज येन के वैल्यू पे आ जाओ, उसके बाद ही कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट फॉर वर्किंग सेक, लेकिन पर जापानीज येन पे है कि पर एआरडी पे? आई थिंक पर एआरडी पे आना मच बेटर है ना। चलो मैं भी अभी पर येन ही ट्राई कर लेता हूँ। पर येन
हाउ मेनी ARD, ठीक है, क्योंकि ARD पर ARD से मेरे से हो नहीं रहा है, तो अभी उल्टा ही जाके देखते हैं। तो ये देखो, ये तो मेरे को ऐसे रेट्स मिले, ठीक है। अब मैं चार्ज करूंगा, ये हो गए मेरे स्पॉट रेट्स, लेकिन इन्होंने बोला है कि करंटली करंटली इन्फ्लेशन आया है, दे आर सेइंग। यानी कि ईयर जीरो के बिगिनिंग में ही इन्फ्लेशन से आ गया है कि करंटली 1.09 है ARD में। सो 1 + HC, 1 + HB, 1 + HC कितना है, 1.09, 1.015, ठीक है। ये है मेरा बेस करेंसी। अभी कितना आता है, दिस इन टू ब्रैकेट ओपन, दिस डिवाइड बाय दिस, 1.79, 1.75। अब मैं तो ये वाला यूज करने वाला था, ये वाला तो डिसीजन मैंने पहले ही वैसे ले लिया था कि मुझे कौन सा वाला यूज करना है। लेकिन फिर भी एक बार है ना, इनके मुताबिक करके देख लेते हैं। हाँ, मतलब इनके हिसाब से एक जापानीज येन और एक ये, ठीक है। दिस तो विल रिमेन सेम ओनली 10-15, लेकिन ARD मेरा बदल जाएगा। ARD मेरा ये रहेगा और मेरा ARD ये रहेगा, ठीक है। बैंक विल बैंक विल डू व्हाट, बैंक विल, सॉरी, बैंक और स्टॉक एक्सचेंज विल सेल एट हाई, हाई व्हाट, हाई वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू येन में। सो टोटल फंड्स जो रिक्वायर्ड है ना, टोटल फंड्स जो मेरे को रिक्वायर्ड है वो है 134.99, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास अभी फंड्स कितने अवेलेबल है, तो वो है इतने। तो मेरे को बेसिकली, एक मिनट ना, उसमें निकाल ही देता हूँ। तो अब बेसिकली मेरे को कितना और येन चाहिए, आंसर इज 3375, 3375 आंसर है। 3408 आ रहा है मेरे को। बट दे हैव राउंडेड ऑफ टू 0.75, उन्होंने इस चीज को 0.75 पे राउंड ऑफ किया है। मैं भी एक बार 0.75 पे राउंड ऑफ करके देखता हूँ, तो परफेक्ट आंसर आता है। ये देखो, 3408.6, 3408.949। सो उन्होंने वो राउंड ऑफ किया है। तो इसको पर येन में करना ज्यादा बेटर है। बट आई एम वंडरिंग व्हाई मैं पर ARD में आके मेरे को रॉन्ग आ रहा था। क्योंकि पर ARD भी सेम ही आना चाहिए एक्चुअली। मैं शायद, मैंने 1 + HC और HB में शायद कोई गड़बड़ की रहेगी, ठीक है। मैं एक बार जरा ट्राई करके देख लेता हूँ फिर भी, बस एक बार खुद के लिए, कि यहाँ पे कैसे होगा स्पॉट रेट। क्या होगा मेरा स्पॉट रेट, स्पॉट रेट वुड बी, आई टेल यू, दिस डिवाइडेड बाय ARD, which is this, है ना, क्या, दिस वुड बी दिस डिवाइड बाय दिस। अभी मेरा 1 + HC मतलब काउंटर करेंसी जापान का बन जाएगा, मतलब 1.15, यहाँ पे 1.09 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे 1.33 ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ माई दिस वैल्यू ऑफ ARD ना, नो 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 नो, माई, हाँ, गलती में समझ में आई। मैं ARD 1, मैं ARD 1 लिया था, फिर भी मैं ARD में ही वैल्यू, मतलब वो बदल रहा था। 1, कहाँ गया ये, हाँ, ये रहा वैल्यू, एंड ये रहा वैल्यू। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। इसको मैं अगर 1.33 ले लेता हूँ, आ गया क्लोज। अगेन, दिस इज अगेन, मतलब वो सिली मिस्टेक हो गया। मैंने मैं जापानीज येन वहां पे 1 ले रहा था, जबकि मैंने वो डिस्क्रिप्शन में ARD 1 लिखा हुआ था करके, ठीक है। देखो यहाँ पे ना, इन्फ्लेशन इसीलिए चार्ज करना है बिकॉज उन्होंने बोला है कि करंट ईयर में इन्फ्लेशन आया है, दैट्स व्हाई वी हैव टू चार्ज इन्फ्लेशन, ठीक है ना। नाउ, नाउ दैट दिस इज ओवर, वी कैन मूव अहेड टू द, ये था एक्चुअली पूरा, मतलब 12 मार्क्स के लिए ये था।
स्टुपिडिटी। अभी उन्होंने क्या मांगा है 12 मार्क्स के बाद? Estimate the net present value of Aeron project in Japanese yen based on the end of the year, based on end of year one being the start of the project. ये क्या है भाई? ये क्या था? जो मेरे को नहीं समझा, ये तो मैं आई एम जस्ट डूइंग दिस सम ऐसे है अभी पर्टिकुलर्स। 0 1 2 3 4। कैश फ्लोज इन एआरडी लिख देता हूँ। कैश फ्लोज इन एआरडी विच इज 10150 2530 3760, सॉरी 5760 6780 1655। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को 0.75 ऑलरेडी मिल गया है। तो 15। अभी मैं इसी चीज को 1.09 डिवाइड बाई 1.015, ये मैं करता जाऊंगा अगले 4 सालों के लिए। ये मैंने किया। और अभी इज इक्वल टू राउंड दिस, कमा 2 रखूं। 2 रख देता हूँ क्योंकि ये लोग ऐसे लोगों ने भी 2 रखा हुआ है, तो 2 ही रखता हूँ मैं। ओ, लास्ट में 1 ही आ गया। अभी कैश फ्लोज इन येन, अब मेरे को येन में चाहिए क्योंकि ये एआरडी में है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं डिवाइड करूंगा हर एक वैल्यू को। परफेक्ट। ये मैंने कर दिया। टैक्स रेट्स क्या थे वैसे दोनों में, मुझे वो भी देखना है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है अभी। द एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन यूजिंग द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर when the project commences at the start of the project year 0. The numbers are given in ARD. The total investment required for the project of ARD is 1050 and separated into buildings, machinery, working capital in the table above. The machinery is eligible for tax liability on a straight line basis and the working capital is redeemable at the end of the project. ठीक है। सबका वर्किंग तो बराबर ही किया हुआ है, ऐसा तो कुछ है नहीं। The impact of inflation has been incorporated into sales revenue and cost figures. Good. Corporation tax paid in the based on Aaron's rate of 15%. The tax is payable in the year the tax liability arises. Undertaking Aaron project will result in lost sales for Vashi. These sales would have generated pre-tax contribution of Japanese yen lost sales. तो ये sales lost हो गए, तो ठीक है, तो इसको lost sales. How many sales have I lost? I have lost Japanese yen में 110 million के sales in the first of the project, rising by the Japanese rate of inflation which is into 1.015. तो इसको मैं ऐसे करते जाऊंगा
और ये मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है ना, तो इसको मैं नेगेटिव में लिख देता हूँ। टैक्स क्लेम। तो मुझे इस चीज के ऊपर टैक्स नहीं भरना है, तो मेरा टैक्स रेट कितना है? Japanese corporate tax is 30% payable in the year that liability arises. Bilateral tax treaty exists only. ठीक है, गुड। इसके ऊपर 30%। एंड मेरे को अभी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैक्स पेएबल, वो भी तो आएगा। मेरा एक्स्ट्रा टैक्स पेएबल कितना होगा? ध्यान देना, यहाँ पे आ गया। चलो, एक्स्ट्रा टैक्स पेएबल कितना है? पर्टिक्यूलर्स 0 1 2 3 4। टैक्सेबल प्रॉफिट्स 1800 5800 6800 एक्सचेंज रेट्स। टैक्सेबल प्रॉफिट्स इन येन। तो अभी इन वैल्यू पे मेरे को 15% एक्स्ट्रा भरना है, ठीक है ना? मैंने भर दिया। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इनकॉर्पोरेट नहीं की थी, लेकिन इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। एरॉन प्रोजेक्ट कॉस्ट include components which were made in Japan by Washi company and would be imported to Aeron project. Pre-inflation revenues generated from the sale of components are as follows। और कंट्रीब्यूशन देखो, हम लोग 25% इनकर कर रहे हैं। The hell dude, just भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ 9 मार्क्स के लिए यार। कंपोनेंट कंपोनेंट ये करने बैठेंगे तो पेपर ही फिनिश नहीं होगा भाई। 1200 2400 2500 एंड 300। अभी इस चीज का मेरे को इन्फ्लेशन चार्ज करना है ईयर वन में। देखो मैंने यहाँ पे 1.015 ऑलरेडी किया हुआ था, तो अभी इसके और 1.015 एंड देन सो ऑन ये होते जाएगा। ठीक है ना? या इसको वन पकड़ना है क्या? मैंने पहले तो बराबर से इन्फ्लेशन चार्ज किया था ना, आई थिंक करना चाहिए। तो अभी आता है कंपोनेंट रेवेन्यू। कितना होगा? दिस इनटू दिस कंट्रीब्यूशन। तो वो आता है 25% का कंट्रीब्यूशन, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी कंपोनेंट कितना आता है? जितना ये आया उतना ही। और अभी मुझे इस चीज के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। अरे टैक्स क्लेम नहीं भाई, टैक्स 30% का। चलो, ये भी भर दिया। प्लीज फकिंग फिनिश यार। कॉस्ट ऑफ, अरे मैं चलिए मैं भूल ही गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो है अभी। ये सबका सम ले लेते हैं एंड बस अभी 12% से डिवाइड करते हैं, बस हो मतलब ये 12% डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यूज इज इक्वल टू सम। ठीक है, दिस इंटू दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। वन अभी 12%, 0.893, 0.797, 0.797। फिर आता है 0.712।
और लास्ट में आता है 0.636। तो फिर मेरे को नेगेटिव ही आ रहा है इतना करने के बाद। मैं चलो एनपीवी तो 377 का नहीं यार, ये ऐसा नहीं भाई, ये भी गलत नहीं हो सकता भाई, ये है वो सही है भाई। मैं ओके 347 नेगेटिव, ठीक है, आई आई वुड टेक दैट। मेरे को चलेगा भाई, ये गलती है मेरी है भाई। देखो 3123 बिल्कुल सही है, 6621 नहीं, 6691 आया मेरे को। देखो इन्फ्लेशन यहाँ पे रेट्स रेट्स का यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ किए हुए, 0.93 बिल्कुल से यहाँ पे 1 है। ठीक है, सो आई थिंक ओवर एंड ऑल तो ठीक ही है। लॉस कंट्रीब्यूशन 115 बिल्कुल सही है। ये देखो ये वाला टैक्स क्लेम भी बिल्कुल परफेक्ट है, कंट्रीब्यूशन भी बिल्कुल परफेक्ट है। टैक्स ऑन कंपोनेंट वो मेरा गलत आया है, कैसे भाई? अच्छा मेरा कंपोनेंट भी गलत आया है, रुक जाओ, कंपोनेंट में अभी क्या गलत आया गया भाई? हाँ उन्होंने ना देखो इन्फ्लेशन जो है ना वो उन्होंने यहाँ पे 1 लिया रहेगा ईयर ईयर जीरो में, इसीलिए अभी आ गया कंपोनेंट बराबर से। देखो कंपोनेंट 300, मेरे को 304.5 आया है। देखते उन्होंने कंपोनेंट का कैसे किया है। देवजन कंपोनेंट के लिए इन्फ्लेशन है ही नहीं, फर्स्ट ईयर में उन्होंने वन ही इन्फ्लेशन पर मतलब वो मतलब पकड़ के बैठे, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज सी यहाँ पे तो हमने, और यहाँ पे तो हमने स्पॉट यील्ड पे 1.105 था, तो हमको आंसर तो हमको बिल्कुल सही आया था, क्योंकि करंट ईयर में इन्फ्लेशन हुआ है और वो हमने बोला है कि हुआ है। सो दैट इज समथिंग विच इज की क्वेश्चनेबल, कि भाई ईयर इधर क्यों वन ले रहे हो फिर, है ना? अगर इसको वन ले लेंगे, ईयर वन को ही अगर हम वन वन पकड़ के चलेंगे, तो देखो आंसर 300 कंट्रीब्यूशन, तो वहां से फिर बेटर होना चालू हो ही जाता है आंसर। एंड देन एडिशनल टैक्स पेएबल बिल्कुल सही है। सी दीज फिगर्स ना, मैं बताता हूँ एडिशनल टैक्स पेएबल का, और यहाँ पे सी में बताता हूँ क्या है। ईयर टू में उनको मिला है 6621, हमको आया है 6697, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे क्या है, तीन का अगर हम ले ले ऐसे कंट्रोल थ्री, दे हैव टेकन, देखो यहाँ पे 0.865 है। मैंने जब यहाँ पे दो डेसिमल लिया तो इसने खाली 0.86 लिया। अगर मैं यहाँ पे 0.87 ले लूंगा तो देखना आंसर देखो पूरा चेंज हो जाता है, एंड एनपीवी बिकम्स -456, जो इनको आया है -457। सो दैट इज समथिंग। सो हमारे इस पूरे सम में सिर्फ दो प्रॉब्लम थे, एक तो ये इन्फ्लेशन, सॉरी ये एक्सचेंज रेट, और दूसरा इन्होंने कंट्रीब्यूशन को 1 ले लिया। तो ये दो प्रॉब्लम ऐसे थे जो शायद हमें नहीं क्लिक हुए। इसके तो चलो कंसिडरेशन मिल जाएगा, इसको जाने दो, एक्सचेंज रेट को वो छोड़ दो। बट दिस, ये कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन को 1 कैसे ले लिया ईयर वन के ही, जबकि उसने बोला है कि वहां पे इन्फ्लेशन है ना? सो व्हाट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट ना, ये पता है मैं बार बार इग्नोर कर रहा था इस वाले पॉइंट को। estimates are based on using the end of the first year when the project commences as the start of the project year zero। तो ये जो है ना कि मैं ईयर वन के एंड को ईयर जीरो पकड़ के चल रहा हूँ, तो वो इन्फ्लेशन की बात हो रही थी कि मैं ईयर वन में कोई इन्फ्लेशन चार्ज नहीं करूंगा, वो इस तरीके से उस क्वेश्चन को एक्चुअली इंटरप्रेट करना है। ठीक है ना, ऐसा है वो। एंड देन बाद में तो सब उन्होंने सिर्फ थ्योरी दी है, बेनिफिट्स ऑफ सेपरेट एंड बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी डिपार्टमेंट, सो दैट इज ओके, क्योंकि आई एम प्रेटी मच आई थिंक डन विद दिस एनपीवी। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। एंड बस वो ईयर जीरो, मतलब एक छोटी गलती थी वो ईयर जीरो की, वरना पूरा सम करेक्ट आ जाता, तो दैट इज बैड फॉर मी। ठीक है।